Good morning, everyone. Welcome to the another session of Information and Technology. Today, we will continue in chapter number 3, that is ICT 1 or ICT Skills 1. In the same chapter, in the last class, we have discussed about few terms related to Windows or operating system, that is post, power on self-test. Then we have talked about boot or booting. Then we have discussed few things related to working with Windows, that how to work on Windows, whether it is Windows operating system or Linux operating system, some basic steps, creating a folder, renaming a folder and all that. Today we will start a new terminology or something, all the terms related to internet. These are the terms which is maybe already familiar to you, which is kind of already acquainted to you, but at the same time, since it is there in the syllabus, we need to talk about them, and we'll try to explain them in brief so you can understand and write it on your own language whenever it comes to write about. We all know internet is basically a network of network. नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और ग्रुप ऑफ एनी काइंड ऑफ डिवाइस ऑफ सिमिलर नेचर. ठीक है, नेटवर्क सिर्फ जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर्स का ही ग्रुप है, ये कंप्यूटर्स का ही एक कलेक्टिव कनेक्शन है. एनी काइंड ऑफ डिवाइस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ नेचर have or may form a network. We know what is network is all about. Network is basically introduced to share the data, to communicate with one another for quick transfer of data. And the concept of network has been started by United States of America or their defense department in the form of ARPANET, or the name of the project was ARPA. धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग नाम से नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया, whether it is CSNet computer science network, whether it is NSFNet National Science Foundation network, whether it is CICLADIS, a kind of medical science network by France. What I'm trying to say that we are in a position nowadays where we cannot think about a situation where we cannot execute any single work without the presence or without the help of internet. We are getting dependent into this, whether it is education, whether it is communication, whether it is entertainment, whether it is traveling, whether it is online bank or banking, business like e-commerce. Means you can have number of areas in and around which you will find that they are actually getting into the form of web, where things are getting executed, things are available only in the form of web, where we are actually using the services of different field, different areas, different vendors or different service provider through some mobile application and internet. And this has become more popular because of user-friendly digital device like smartphone and high-speed internet services, and that is available with the very reasonable rate nowadays. What is more important to discuss here, that how we people are executing our daily life work just only with the platform where actually things are available or integrated into the internet services. Now this is a kind of introduction that we need to understand, or that need to take or accept exactly how internet is so important for us. Then we have HTML. There are certain terminology which has been discussed in the next few pages. Just I will try to discuss about them. HTML is something that is familiar to you again. It is a markup language, not a programming language. It is a markup language. And why it is used? It is used to create web page. Why do we need to create a web page? So we can put our information in web pages, and with a collection of web pages we can create a single object, a combined object, that is called website. So HTML is something that was introduced by Tim Berners-Lee in the year of around 1990. We were having some other markup language before this, like GML, generalized markup language. Okay, then SGML, or standard generalized markup language, SGML. Then we got another language in the form of XML, extensible markup language. HTML आने के बाद काफ़ी चीज़ें बेहतरीन हो गई. प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी का इशू जो था, कि अगर मैंने वेब पेज डिजाइन किया है किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में और कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वेब के ऊपर एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो प्रॉब्लम थी. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ HTML these things got just reduced. Then we have web page. Web page is an electronic document that contain the content of a website. वेब पेज क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो करता क्या है, वेबसाइट के कंटेंट को कंटेंट कर
ठीक है, वेबसाइट के कंटेंट को कंटेन करता है। आपका एक बुक को अगर हम कंसिडर करें एज ए वेबसाइट, तो बुक का हर एक पेज एक वेब पेज, और हर वेब पेज में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उस वेबसाइट से रिलेटेड है, यानी जो उस बुक से रिलेटेड है, जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वेब पेज इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट. Then we have some screenshot how we can consider, or we can just think about situation where exactly we can understand what is website or what is web page. Then again, just I told you that a collection of web page is called website, and whenever we talk about a website, we are talking about a common subject, we are talking about a common platform where things are available related to one single subject, one single topic. And in each website, the very first page that which appears whenever we are opening a website, that is called home page. Okay. Then web browser, we have internet connectivity, we have a device, how we are going to access any website with the help of a software, with the help of an application software, and that software is known as browser or web browser. Web browser is an interface, web browser is a platform, web browser is an application which actually allow us to access the different websites which can be accessed from a device in a mobile or in a laptop or desktop. So there are a number of web browser available. You have to be familiar with at least two browsers, that is quite commonly used. We are familiar with the Chrome, Firefox. Nowadays in Windows we get Edge. Then we have a web address. Listen, we have discussed about website, we have discussed about web page, we have discussed about web browser. Now all these websites which we are accessing, they need to be accessed with a type, with a unique address which has been assigned to them. Like if I am talking about scsrachi.com, I will get only website of Surendranath Centenary School. That SCS Rachi cannot be assigned to any other website or any other particular college or any other company website, because it has been already assigned to Surendranath Centenary School. Similarly, for each and every website, there is a unique address that has been assigned by W3C. They have different bodies to manage all these things. तो वेब एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी है हर एक वेबसाइट का, और इसमें दो तीन टर्म है डीएनएस. ठीक है, डीएनएस इज बेसिकली डोमेन नेम सर्विस और डोमेन नेम सिस्टम. Domain is basically the last portion after dot we put in any particular web address, like .com, .nic.in, .uk, .in, ठीक है, .org. ये जितने भी तरह के आप देखते हैं डॉट के बाद, ये डोमेन को स्पेसिफाई करते हैं. डोमेन इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, एक कंटेनर है. जैसे कि अगर scrachi.com की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफाइड या ये क्लियर हो जा रहा है कि सुरेंद्रनाथ की वेबसाइट .com बोल के कंटेनर में अवेलेबल है. इसका वेबसाइट ना कि .org में मिलेगा, ना ही .edu में मिलेगा. ठीक है, तो एक कैटेगरी काइंड ऑफ थिंग हैज बीन क्रिएटेड विद द हेल्प और इन द फॉर्म ऑफ डोमेन नेम सिस्टम. ठीक है, जो वेबसाइट्स को क्लासिफाइड करती है अलग अलग कैटेगरी में. उसमें और एक टर्म है टॉप लेवल डोमेन. टॉप लेवल डोमेन इज बेसिकली द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर वेब एड्रेस. ठीक है, like .com, .edu and .gov. ओके, डीएनएस को कंट्री वाइज पे भी कैटेगराइज किया गया है आज के टाइम पे. ठीक है, एक कंट्री वाइज होता है और एक जेनरिक वाइज होता है. द फर्स्ट वन इज जेनरिक वाइज एंड द सेकंड वन इज कंट्री वाइज, जिसमें हम .in मतलब इंडिया की डेडिकेटेड वेबसाइट है. .uk इज यूनाइटेड किंगडम, जेपी इज जापान. ठीक है, इस तरह से अलग अलग डोमेन नेम को आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं. वेब सर्वर, web server is basically a centralized machine, a centralized location, a centralized computer through which everything is available, everything is getting transmitted. जहाँ से सब कुछ अवेलेबल है. मतलब आज के टाइम पे अगर आप अपने वेबसाइट पे, ठीक है, आप अपने वेबसाइट पे अपने डिवाइस पे किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, किसके थ्रू, ब्राउजर के थ्रू, तो ब्राउजर आपके लिए एक चैनल का काम कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है. लेकिन आप एक्सेस किसको कर रहे हैं? वेब सर्वर को. क्यों वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं? क्योंकि जो आपका वेबसाइट है वो किस में अवेलेबल है? वेब सर्वर में. तो वेब सर्वर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम लोग वेब सर्वर के एड्रेस को कॉल करते हैं, उसको टाइप करते हैं, ताकि जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी डेटा है हमारे सिस्टम पे अवेलेबल हो पाए. इस डायग्राम को देखकर आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे एक यूजर अपने सिस्टम पे बैठा हुआ है. दैट यूजर इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंट. he is installing or he has some sort of software which is web browser, Chrome, Mozilla, Opera, कुछ भी हो सकता है.
उस पर वो टाइप कर रहा है कोई एड्रेस, वो एड्रेस, वो पर्टिकुलर लोकेशन, वो पर्टिकुलर डेटा कहाँ अवेलेबल है, वेब सर्वर में। तो वेब सर्वर में जो भी उस एड्रेस, जिसको भी उस पर्टिकुलर एड्रेस को अलोकेट किया गया है, वो डेटा आपके स्क्रीन पे दिखता है, यानी क्लाइंट के स्क्रीन पे दिखता है। वर्ल्ड वाइड वेब की फ्रेमवर्क है सॉरी, फ्रेमवर्क है एक तरह का वर्चुअल कंसोर्टियम है जो सारा कुछ मैनेज करती है वेब रिलेटेड। कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे अगर आप किसी भी तरह के वेबसाइट पे एक्सेस कर पा रहे हैं, अपना डेटा को वेबसाइट बनाकर पब्लिश कर पा रहे हैं, हर तरह के डिटेल्स को इंडेक्स के फॉर्म में, यूआरएल के फॉर्म में कैटेगराइज किया जा रहा है या क्रिएट किया जा रहा है, सारा डेटा आपके सिंगल क्लिक पे अवेलेबल हो रहा है आपके स्क्रीन पे। तो ये सिंगल फ्रेम के अंदर, एक सिंगल विंडो के अंदर अवेलेबल करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स विच इज अवेलेबल इन द वेब। ठीक है, मतलब आपको अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब के प्लेटफॉर्म पे घुसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब आपके लिए एक एंट्री गेट की तरह है, आपके लिए एक फ्रेमवर्क, एक प्लेटफॉर्म की तरह है जो सारी चीजों को अपने अंदर समाये हुए है। कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे आप जितने भी वेब की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को रेगुलराइज करना, मॉनिटर करना, उनको अपडेट करना, ट्रबल शूट को देखना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको ट्रबल शूट करना, डेटाबेस अपडेट करना, कोई नया डेटा क्रिएट करना है, हर तरह की चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट है। और इन सभी चीज़ों को सुपीरियर लेवल पे कौन मॉनिटर करती है? वर्ल्ड वाइड वेब और W3C। ठीक है, प्रोटोकॉल इज बेसिकली ए सेट ऑफ रूल, ए सेट ऑफ गाइडलाइन दैट वी फॉलो इन जनरल। ठीक है, जैसे कि अगर आपको स्कूल आना है तो आपको पता है कि देर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू फॉलो, और इफ यू आर एट होम ऑल्सो वी नीड टू फॉलो सर्टेन थिंग्स विच हैज बीन डिफाइंड बाय आवर पेरेंट्स एंड विच इज काइंड ऑफ थिंग्स विच इज कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम और विच इज हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सिमिलरली इंटरनेट पे आप हर तरह के काम के लिए एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए अपने ब्राउजर पे, मान लीजिए आपने अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम ओपन किया, उस पर आपने टाइप किया scSrachi.com, तो आपका गूगल क्रोम scSrachi.com यानी SCS रांची सुरेंद्रनाथ सेंटिनरी स्कूल के वेब सर्वर से, जिस भी वेब सर्वर में, जिस भी जगह पर वो अवेलेबल है, आपका गूगल क्रोम उस वेब सर्वर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए भी उसको एक प्रोटोकॉल चाहिए जिससे ये कम्युनिकेशन सिक्योर स्टैब्लिश हो, ताकि दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर का काम शुरू हो सके। डेटा ट्रांसफर नहीं अगर कहें, इसको सिर्फ कहें कि हम सुरेंद्रनाथ सेंटिनरी स्कूल की वेबसाइट को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब उस कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए एक प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है वो रिएक्ट करेगा या वो वहां पर अवेलेबल होगा, दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मान लीजिए सुरेंद्रनाथ सेंटिनरी स्कूल के वेबसाइट पर आप जा रहे हैं, सिलेबस में आप वहां पर टर्म 1 का सिलेबस या टर्म 2 का सिलेबस में जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम पे या मोबाइल पे PDF फाइल डाउनलोड हो जाता है। तो वो PDF फाइल आपके सिस्टम पे किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है? TCP/IP, ट्रांसफर ट्रांसमिशन और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि ये इंश्योर करता है कि डेटा ट्रैवल कर रहा है कहां से कहां तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। सोर्स कहां है? वेब सर्वर ऑफ सुरेंद्रनाथ। डेस्टिनेशन क्या है? जो उसको एक्सेस कर रहा है, चाहे वो हम हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। तो TCP का काम है ये इंश्योर करना है कि डेटा इज ट्रैवलिंग। IP का काम है डेटा ट्रैवल कर रहा है लेकिन सही एड्रेस पे ट्रैवल कर रहा है जो कि उसने जिसने एक्सेस मांगा है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल और IP इज मेकिंग इंश्योर दैट यस इट इज गेटिंग इनटू द करेक्ट एड्रेस और करेक्ट डेस्टिनेशन। देन URL इज वैसी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा URL है क्या। ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग तरीके से लेवलिंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। आपके पास एक वेब एड्रेस है HTTP, ये तो प्रोटोकॉल है, www.ittalentsearch.org। तो ये www.ittalentsearch.org क्या है? एक वेब एड्रेस है। ठीक है, एक वेबसाइट की एड्रेस है, वेब एड्रेस है। स्लैश देके होम दिया हुआ है, फिर स्लैश देके इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होम स्लैश इंडेक्स किस लिए है? ये एक पर्टिकुलर पेज का एड्रेस है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं इसको प्रॉपरली आपके सामने अब इस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको क्लियर आइडिया है URL के बारे में, then still let me just explain to you through a proper demonstration.
जैसे मैं यहाँ पर एक एड्रेस टाइप कर रहा हूँ SCS रांची, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ भी गया scranchi.com, इसी को मैं एंटर करता हूँ। ये सुरेंद्रनाथ की वेबसाइट का एड्रेस है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप ध्यान से आप ऊपर में देखिए, जैसा जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर मेरा ऊपर में है, आपको दिख रहा है, ये एड्रेस बार है, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है पूरा लेफ्ट से लेकर, यानी जो लॉक पैड दिख रहा है, लॉक पैड ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आपका वेबसाइट सिक्योर है। इसका जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है HTTPS के थ्रू हुआ है, ना कि सिंपल HTTP के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये पूरा ब्लैंक, ये जो बॉक्स देख रहे हैं एरिया, इसको एड्रेस बार बोलते हैं। ये है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का वेब एड्रेस। अब जैसे मैं इस एकेडमिक में जाता हूँ और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्लिक करता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन पॉलिसी, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर एक चेंज दिखाई दिया, एग्जाम exam_ndn_plc.php। तो ये क्या है, इसको सिर्फ मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसी पोर्शन को देखिए, ठीक है। ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये इस पेज का एड्रेस है, scranchi.com पूरे वेबसाइट का एड्रेस है। लेकिन जैसे मैं कोई दूसरा पेज ओपन करता हूँ, किसी भी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, हर इंडिविजुअल पेज की एक यूनिक आइडेंटिटी है, हर इंडिविजुअल पेज की एक यूनिक एड्रेस है। तो ये जो है ये इस पेज का एड्रेस है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आप एडमिशन पे जाते हैं और मान लीजिए हाउ टू अप्लाई में चले गए, ठीक है। तो जैसे आप गए तो यहाँ पर आपको फिर से चेंज दिखाई दिया होगा। PHP एक प्लेटफॉर्म है वेब पेजेस को क्रिएट करने का, ठीक है, प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट। पहले लोग HTML जावास्क्रिप्ट, ठीक है, .NET पे काम करते थे, आज के टाइम पे PHP पे ज़्यादा वेब पेजेस क्रिएट होते हैं। तो ये वेब जो पर्टिकुलर एड्रेस है ये इस पेज का एड्रेस है, ठीक है। तो दिस इज हाउ ए इंडिविजुअल पेज इज हैविंग ए यूनिक एड्रेस एंड दैट यूनिक एड्रेस इज नोन एज URL। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जितने भी पेजेस हैं सारे किसके अंदर है, SCS रांची के अंदर। तो SCS रांची एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, एक बड़ा सा डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस अवेलेबल है और हर वेब पेजेस का एक इंडिविजुअल एड्रेस है और उसको क्रिएट किया गया है ताकि हम उसी पेज को एक्सेस कर पाए। मान लीजिए हम अगर events_act.php अगर दे दे तो क्या होगा, अगर सभी का दे दे तो जितने भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा इसी पेज को बार बार वो एक्सेस करेगा, ओपन करेगा। तो हर पेज की यूनिक आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है जिससे कि आप उसी पेज के कंटेंट को, उसी पेज के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, ठीक है। सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पेज इन एनी वेबसाइट, वेदर इट इज CBSE वेबसाइट, एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट, आप ये नोटिस करोगे जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो फर्स्ट पेज जो होता है, ठीक है, दैट इज होम पेज। जैसे इस पर्टिकुलर वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पे आएगा थोड़ी देर में, दैट इज वो जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे ओपन होता है, ये है उसका वेब एड्रेस। अब इसके हर पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो वो उसका URL। इसमें हर कंपोनेंट को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कि इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, आप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फर्स्ट इज protocol, second is World Wide Web, the third is a domain name, the last one is TLD, then the URL path, ठीक है। So this is how it has been discussed or labeled over here। अब कोई भी URL के दो बेसिक टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट URL एंड रिलेटिव URL, ठीक है। तो एब्सोल्यूट URL इज बेसिकली जहां पर आपका URL कंप्लीट होता है, ठीक है, जहां पर आपका URL पूरे कंप्लीट एड्रेस के फॉर्म में होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये पोर्शन अगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर स्क्रीन हुआ है फॉर एग्जांपल के बाद, ये क्या है, www.itpeople.com/index.html, ये कंप्लीट एड्रेस है। कंप्लीट एड्रेस ऑफ पेज इज एब्सोल्यूट URL। जब फुली एड्रेस नहीं होता, फुल एड्रेस नहीं होता, बट वो प्रोटोकॉल को, होस्ट को, वेब एड्रेस को एक्सेस करता है, इनहेरिट करता है और आपको अपने एक्सेस रिक्वेस्टेड पेज पर लेके चला जाता है, तब उसको हम लोग रिलेटिव URL बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और सारा डेटा अगर एक कॉमन फोल्डर में है तो आप सिर्फ link.html में डालेंगे तब भी आपका वेबसाइट एक्सेस कर पाएगा। नॉर्मली जब भी हम लोग कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारा वेब पेज को एक पर्टिकुलर फोल्डर में रख रहे हैं, तो हमें हर बार कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं होती है। वो अगर एक सिंगल कंटेनर के अंदर है तो आप बस हैशटैग या देकर आप
उस वेब पेज का एड्रेस दे दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। देन वी हैव HTTP, द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको HTTP के बारे में बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP है क्या? Whenever we are accessing any website, the web browser needs to establish a connection with the web server. So that connection can be established only with the help of a protocol that is called HTTP, Hypertext Transfer Protocol. तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, इनिशियल लेवल का जो कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है, जो सारे चीज़ों को ट्रांसफर करता है वेब सर्वर से आपकी स्क्रीन पे, चाहे वो इमेज हो, डेटा हो, किसी भी तरह का कोई ग्राफिक्स आइटम हो, सभी चीज़ों को वो लोड करेगा, तभी वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन होता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम HTTP ही करता है। तो ये आज के लिए इतना ही था, ये चैप्टर भी आपका ओवर हो गया। किसी तरह का कोई डाउट है प्लीज़ पुट इट इन द ग्रुप, जो भी आपका होमवर्क है आपको जीसी में भी अपडेट कर दिया जाएगा। सो दिस इज फॉर द डे चिल्ड्रन, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।